بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، رمضان المبارک اپنی پوری برکتوں کے ساتھ اور رحمت کے ساتھ چل رہا ہے، اور اس مہینے میں ہماری نوجوان نسل برکت حاصل کرنے کے بجائے اس کا الٹا یعنی کہ ان کی عادت بن چکی ہے کہ وہ ساری رات جاگتے ہیں۔ کوئی کرکٹ کھیلتے ہوئے نظر آتا ہے تو کوئی موبائل دیکھتے ہوئے نظر آتا ہے، اور جب سحری کا وقت ہوتا ہے تو یہ لوگ سحری کر کے جا رکھتا ہے اور نماز فجر ادا کر کے سو جاتے ہیں۔ دوستو، جو لوگ سحری کر سو جاتے ہیں وہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ بیان ضرور سن لے۔ تو چلیے اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیں، کیونکہ لائک کرنے سے یہ ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت ہے کہ جب مؤذن فجر کی اذان دے کر خاموش ہو جاتا ہے اور سورج طلوع ہو جاتا ہے یعنی کہ صبح کی روشنی پھیلنے لگتی ہے، تو اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں اور 2 رکعت سنت فجر ادا کرتے، اور اس کے بعد اپنی داہنی کروٹ پر لیٹ جاتے تھے، یہاں تک کہ مؤذن اقامت دینے کی اجازت حاصل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آتا تو آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز کے لیے مسجد تشریف لے جاتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک ذکر خدا میں لگے رہنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہے کہ میں صبح کے وقت سوئی ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے پاؤں سے ہلایا اور فرمایا، بیٹی اٹھو اور اپنی رب کی رزق کے تقسیم میں شامل ہو جاؤ اور لاپرواہ لوگوں کی عادت نہ اپناؤ۔ اللہ تعالیٰ صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے تک لوگوں کا رزق تقسیم کرتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رزق حاصل کرنے کے لیے صبح صادق سے لے کر سورج طلوع ہونے تک مت سویا کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا کہ اس وقت 70 مرتبہ تسبیح، تصدیق اور استغفار کرنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ زمین کی سطح میں کیے جانے والی 3 کاموں کی وجہ سے زمین اپنی تکلیف کا اظہار کرتی ہے۔ نمبر 1، کسی کا ناحق خون بہانے سے۔ نمبر 2، او غسل جو زنا جیسے برے کام کے بعد کیا جائے، اور نمبر 3، سورج نکلنے سے پہلے سونے سے۔ حضرت ابو وائل فرماتے ہیں، ہم فجر کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، دروازے سے سلام کیا تو انہوں نے ہمیں اجازت دے دی، مگر ہم تھوڑی دیر دروازے کے ساتھ ٹھہرے رہے تو ایک باندی آئی اور اس نے کہا کہ تم اندر کیوں نہیں داخل ہو رہے؟ پھر ہم اندر داخل ہوئے تو دیکھا حضرت عبداللہ بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے فرمایا، تمہیں کس چیز سے اندر آنے میں روکا ہے جبکہ تمہیں اجازت دے دی گئی تھی؟ تو ہم نے کہا کہ حضرت کوئی بات نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم نے خیال کیا کہ گھر والوں میں سے کوئی سو رہا ہو۔ اس میں حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ تم نے حضرت ابن ام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں غفلت کا گمان کیا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر حضرت عبداللہ نے تسبیح پڑھنا شروع کر دی، یہاں تک کہ خیال ہوا کہ سورج نکل گیا ہے، تو باندی سے فرمایا کہ دیکھو کیا سورج نکل آیا ہے۔ بہت سے روایت میں ہے کہ اللہ پاک صبح صادق سے لے کر سورج طلوع ہونے تک مخلوق کے لیے رزق تقسیم کرتا ہے، یعنی وہ لوگ جو اس پورے وقت میں غافل رہتے ہیں
सोए रहते हैं तो वो रिज्क की बरकत से महरूम हो जाते हैं। तो इस हदीस से मालूम हुआ कि सुबह सादिक से लेकर सूरज निकलने तक रिज्क की तकसीम होती है और इस वक्त सोना लापरवाह लोगों का रवैया है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह ताला अजमईन, इन लोगों का तरीका ये था कि जब वो लोग फजर की नमाज पढ़ लेते थे तो सूरज निकलने तक अपनी ही जगह पर ही बैठे रहते थे और जिक्र अजगार में लगे रहते थे। उस वक्त जिक्र इलाही में लगे रहने से रिज्क में बरकत होती है और हमारे मुआशरे में रातों को जागना जैसे कि ट्रेंड ही बन गया है। नौजवान नस्ल रात को 3-3, 4-4 तक जागती रहती है और फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप वगैरह पे अपना वक्त जाया करते रहते हैं। इसी तरह उनकी सुबह की नमाज भी कजा हो जाती है और ये दोपहर के 1 या 2 बजे तक सोए रहते हैं और उनके घर में भी कोई ऐसा फर्द नहीं होता जो उन्हें ऐसा करने से रोके। हम आज की इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि ऐसे नौजवान के बारे में हजरत अली ने क्या इरशाद फरमाया है और उनकी किस्मत में ऐसा करने के लिए क्या कुछ लिख दिया जाता है जो ऐसी हालात की लपेट में आ चुके हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि जो भी इंसान सुबह के वक्त में सोया रहता है तो इस अमल को इस्लाम में सख्त नापसंद करार दिया है। ये दोपहर के अलावा किसी और वक्त में मत सोया करो, जिसे कैलुल्ला कहा जाता है और इसे दोपहर के वक्त में ही कब किया जाता है। और ये हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। कैलुल्ला ओ नहीं कि जो इंसान पेट भरकर खाना खा के सो जाए। कैलुल्ला से मुराद वो चीज है जिसमें आपने खाना खाया है या नहीं, बस थोड़ी देर दोपहर की वक्त में आराम कर लेना ताकि जो आपका बाकी का दिन है वो सही सलामत गुजरे और दिन के बाकी हिस्सों में आप अपनी कामों को अच्छी तरह से कर सके। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना था कि खाना खाकर ना सोया करे, क्योंकि ऐसा करने से इंसान के दिल में सख्ती आ जाती है। और आज की तारीख में तो ये बात इस हद तक गहराई में आकर पहुंच गई है कि यहाँ पर डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि अगर इंसान खाना खाकर फौरन सो जाता है तो वो दिल के आर्जे में मुब्तला हो जाते हैं। और यही बात हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाई थी। अब आते हैं हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की इरशादों की तरफ। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, जब हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज किया, या अली, सुबह सवेरे जो शख्स सोया रहता है उसकी किस्मत में क्या लिखा जाता है? तो हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया कि ए अल्लाह के बंदे, मैंने अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो भी शख्स सुबह के वक्त सोया रहता है और उसकी फजर की नमाज भी कजा हो जाती है या फिर वो फजर की नमाज अदा करके सो जाता है, तो फिर जब फरिश्ते आसमानों से उनका रिज़्क का मुकद्दस लेकर जमीन में आता है और इंसानों में रिज़्क बांटने लगते हैं, और उस टाइम जब भी किसी शख्स को सोया हुआ देखता है तो वो फरिश्ता उसके हिस्से की रिज़्क को वापस आसमानों की तरफ लेकर लौटा चला जाता है। और वो जब नींद से बेदार होते हैं तो ऐसे लोग अपने रिज़्क की तंगी की शिकायत करते फिरते हैं। आपने अक्सर इस लोगों को देखा होगा। आप कभी उन लोगों से जो रिज़्क की तंगी की शिकायत करते हैं, आप उस लोग से जब भी ये सवाल करेंगे कि वो सुबह कितने बजे उठता है, तो उनमें से ज्यादातर लोगों की जवाब यही होगा कि सुबह सवेरे हम लोगों की आंख नहीं खुलती, हमसे सुबह नहीं उठा जाता, हम लोगों को सुबह उठने में बहुत ही मुश्किल लगता है। लिहाजा यही वजह है कि ऐसे लोगों पर रिज़्क का तंग किया जाता है और फिर वो अपनी तंग दोस्ती और बेरोजगारी की शिकायत करते फिरते हैं। हमारी आप सबसे एक गुजारिश है कि सुबह सवेरे उठकर
फजर की नमाज अदा करे, कुरान पाक की तिलावत करे, फिर उसके बाद अपने दिन का आगाज करे। फिर आप देखेंगे कि आपका दिन कैसे सुकून के साथ गुजरता है। आपके दिन में भी बरकत होगी और रिज़्क में भी। और इसी का उल्टा जो लोग 11 और 12 बजे सोकर उठते हैं तो उनका ये हाल होता है कि जो वो लोग अपने दिन का आगाज करते हैं तो उन्हें अपने काम की ही समझ नहीं आ रही होती और वो ये भी नहीं जान पाते कि आज उनका दिन कैसे गुजरा है। उनका दिन ऐसे ही पलक झपकते गुजर जाता है। और जो लोग सुबह जल्दी उठता है वो अपने तमाम काम अच्छे कर पाते हैं और उसके रिज़्क में भी बरकत होती है और वो अपने पूरे दिन सुकून से गुजारते हैं। उन लोगों को किसी भी तरह की बीमारी की भी शिकायत नहीं होती। वो लोग हमेशा तंदुरुस्त रहते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम दीन की मुकम्मल तरीके से सीखने की नसीब अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। आज के लिए इतने ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।